I have worked in Village Steel Plant, I have worked in Bokaro Steel Plant, then ISPB मेरे अंडर में, but the kind of feedbacks which I get from you people all here, and all the government is wonderful, really good. And आज जो आप लोग concerns बताए, जो feedback दिए, most of the concerns and most of the feedbacks we were also not. The basic purpose of the interaction is we should have some new feedbacks, and the basic purpose is to improve. आगे बढ़ते हुए first of all, already आप लोग you are sitting here for last 3.5 hours. I will take 10 to 15 minutes. Once talking about work, you should know the total working of the plant. की plant में कहाँ क्या constraint है, because you all belong to one particular department. You should know कि overall plant का क्या vision and how plant is performing. Talking about Cocoon. Cocoon is, you all know, is one of the major shops whose production and productivity and quality, cost, everything affects the profitability of the plant. Cocoon, at present, Cocoon is doing very well, as we all know. Every day they are doing 345 pushing, no issues, no quality is also maintained. But the challenge and the thrust in Cocoon is to maintain the cost. At the lowest cost, the blend is to be prepared, because you should know कि हमारा जो total sellable steel का cost है, उसका 50% is the coal cost. Whatever cost हमारा आता है, 50% cost is the procurement of coal cost. अगर हम 45,000 हमारा sellable steel का cost आ रहा है, तो उसका 50% will be coal. It is very important कि Cocoon में जो coal का blend होता है, अलग-अलग variety के coal we are using, coal blend is prepared properly, and at the minimum cost, the coal blend is prepared, taking into consideration the good quality of coke, because if the coke quality is not good, blast furnace cannot produce hot metal. That is again very important for blast furnace. Of course, Cocoon is doing good. All batteries are performing well, batteries are healthy. So it is a good sign for a steel plant, because in any steel plant, if Cocoon is not performing well, blast furnace cannot perform, because the coke quality is very important for blast. RMHP, till last year, lot of issues were there in RMHP. Lot of interruptions were there for center plant and blast furnace. But of late, lot of improvements have been done in RMHP. Now RMHP this year, even during rainy season, no interruptions were there. But still, जैसे कि बताया, lot of scope of improvement. Damage is a major concern area for RMHP, where we have to do lot of things to reduce the damages. Every month we are incurring around 1 crore damage in RMHP. About so we have to see and improvement of reliability of the equipment of RMHP, because RMHP में lot of equipments are there, lot of areas, big areas are there, inspection is there. Center plant again is doing very good, almost 12,000 every day they are doing. That is the target for center plant. Blast furnace, our target is we have to produce daily 8,000 tons. We are already easily producing 7,500, but going from 7,500 to 8,000. The constraint is not feeding side. Now the constraint is becoming down below, that is steel melting shop. Because whenever we are trying to increase the production of blast furnace का production करने के लिए the basic thing is coke quality and the raw material. The raw material which is going into the blast furnace center, around 70% raw material is center. Center quality is good, blast furnace can easily produce. And then यहाँ जो capability है blast furnace का, it can easily produce 8,000. And if you are able to produce 8,000 from blast furnace, Durgapur will never be in losses. Every time Durgapur will be in profit. But what is happening? Again in blast furnace, the cost of, at what cost we are doing this? To reduce the coke rate of the blast furnace, to CDI की बात करते हैं. To increase the CDI, go to the CDI at the level of 75, reduce the cost by reducing the coke rate. The major constraint which we are facing in blast furnace is steel melting shop. Steel melting shop will be one area only, that is caster. Health of casters. Health of casters अगर अच्छा रहेगा, blast furnace से जो भी hot metal आ रहा है, that has to be consumed by steel melting shop, and blast furnace can run. Because blast furnace अगर throttle करेंगे हम बार-बार हवा कम ज़्यादा करने से blast furnace का throttle की lose होगी. तो maintaining the health of the caster in steel melting shop is a major concern right now for all of us. We are all doing ED versus paying special attention in that. Lot of improvement also has been there. Work has been done there. We are seeing the health of the casters. अभी just now caster 2 का WSU वगैरह लगाया गया. So once these casters become reliable,
Hot metal we can easily make it. Down below mills में merchant mill already we have seen they are doing very good. 40,000 is a potential. MSM is a major concern area again because MSM the capacity is around 1 million. 1 million ton if you talk, we should produce around 70,000 tons or 75,000 tons. Now MSM is producing around 50,000. तो अगर 50,000 MSM करता है 70,000 की जगह तो 20,000 हमको क्या करना पड़ता है? You have to sell semis. And ये जो semis हम बेचते हैं, semis और finish का जो contribution difference है, that is very high. तो MSM का प्रोडक्शन बढ़ने से और MSM का प्रोडक्ट इज इन मोस्ट डिमांड इन द मार्केट. जितना भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं बोलते हैं कि इसका क्वालिटी इतना अच्छा है कि आप जितना बनाइए हम ले लें. इंडिया में इतना अच्छा मिल कहीं नहीं है फॉर लाइट स्ट्रक्चर और ISP में फॉर हेवी स्ट्रक्चरल USA. नया मिल है, यूनिवर्सल मिल है, रोलिंग इतना अच्छा होता है, फिनिश प्रोडक्ट इतना अच्छा है. बट MSM को वॉल्यूम बढ़ाना है. तो MSM को जो सपोर्ट चाहिए फ्रॉम SMS, फ्रॉम ट्रैफिक, from any other department that has to be given, and our topmost priority is to increase the production of MSM. Wheel and Axle again is a department जहाँ volume बढ़ाने से हमारा काफी profit है, because that is the department जहाँ पे maximum हमको contribution करना है. Wheel and Axle is a plant जिसका volume हमको बढ़ाना है. आज भी हम लोग वहाँ मीटिंग लिए, AD was with at least 5,000 wheels per month. अगर करेंगे तो वहाँ से हमारा additional 9 से 10 करोड़ profit we can earn from Wheel and Axle. ओवरऑल प्लांट इज डूइंग गुड. आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर H1 हम देखें, दुर्गापुर इज द ओनली प्लांट व्हिच हैज डन 100% ऑफ द एबीपी, हॉट मेटल, क्रूड स्टील एंड सेलेबल स्टील. सभी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां. और जो भी H1 का टारगेट था उसमें हम 100% हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील ऑलमोस्ट 100% के आसपास है. बट हमको एक शटडाउन लेना था जो कि हम नहीं लिए, बाद में लिए. फिजिकल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा है सभी शॉप का, बट व्हाट वी आर सीइंग कि फाइनेंशियल अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि खाली तो प्रोडक्शन करने से नहीं होगा. व्हाट इंपॉर्टेंट इज वी शुड बी प्रॉफिटेबल. प्रॉफिट होना है, दैट इज द मेन थिंग. एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट इज द मेन थिंग दैट इज काउंटेड, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स a particular plant whether that plant is profitable or not. Even government nowadays is seeing कौन सा प्लांट प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा. तो प्लांट इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, प्लांट इज इन लॉसेस, फिर मुश्किल होने वाला है टाइम में. इट कैन गो इन दिस इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग कैन हैपन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्लांट अलोंग विद द वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स हम कर रहे हैं, वॉल्यूम का हमको कोई चिंता नहीं है, मेरे को चिंता नहीं है, AD बॉस को भी चिंता नहीं है. हम लोग खाली प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि प्रॉफिट कैसे आता है. एंड व्हाई प्रॉफिट इज नॉट कमिंग? 50% ऑफ आवर प्रोडक्ट इज सेमीज. That is the main bottleneck. इसमें आप किसी का मतलब फॉल्ट नहीं है. फॉल्ट इज वी आर नॉट एबल टू हैव ए मिल. हमारे 50% प्रोडक्ट जो हम अगर 2 लाख सेलेबल स्टील बनाते हैं तो 1 लाख हम सेमीज बेचते हैं, और 1 लाख जो सेमीज बेचते हैं और हम फिनिश बेचते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन डिफरेंस इज अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज पर टन. एंड इफ ऑल दिस सेमीज इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश, तो हमारा पर मंथ 30 से 40 करोड़ का प्रॉफिट ऐसे ही आ जाए अगर वही सेमीज को हम प्लांट के अंदर कन्वर्ट करें. फॉर विच एक बार मिल हमारा ऑलरेडी टेंडर हो गया है और वो टेंडर फाइनल होने वाला है. हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 2 years, 2.5 years में एक बार मिल आएगा 1 million ton. ऑल दिस सेमीज विल बिकम फिनिश्ड. तो हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट विल बिकम टोटली फिनिश्ड स्टील प्लांट इन नेक्स्ट 3 years. दिस इज द टारगेट, फर्स्ट टारगेट. सेमीज नहीं, बिकॉज हम इतना मेहनत करके, तो मेहनत कहाँ होता है? कोको वन, सेंटर प्लांट, ग्लास फर्नेस, SMS, दिस आर द मेन एरियाज जहाँ पे हार्ड वर्क करके हम फिर सेमीज भेज देते हैं और वो सेमीज ले जाके कोई छोटा रीरोल करके वो TMT बनाता है और हमारे TMT के साथ कंपीट करता है. अल्टीमेटली वी मेक प्रॉफिट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा 100% प्रोडक्ट फिनिश्ड होना चाहिए. और विच एक 1 million ton बार मिल ऑलरेडी टेंडर है, फाइनल होने वाला. मे बी नेक्स्ट मंथ विल बी एबल टू प्लेस द ऑर्डर. और 2-2.5 साल उसका कंप्लीशन पीरियड है. तो कोशिश करेंगे कि 2.5-3 साल के अंदर आ जाए और प्लांट बिकम 100% finished. It will give at least 20 to 30 crore additional profit to the plant per month. That will add to maybe 400 to 500 crores of profit per year. That is the kind of contribution this mill will. Another thing is, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का हम करते हैं, but at what cost? If you talk about profit, प्रॉफिट करना है. Nowadays आप लोगों को पता नहीं कितना डाउन बिलो जाता है मैसेज या नहीं, I don't know. I tell to CGMs also कि नीचे भी दीजिए. कॉस्ट
सबको मालूम रहता है, बट एट व्हाट कॉस्ट, कितने कॉस्ट में हमको हॉट मेटल बनाना है, कितने कॉस्ट में सेलेबल स्टील बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर मंथ के बिगनिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमको हमारे पास से दो वेरिएबल रहता है, एक है कोकिंग कोल कॉस्ट और दूसरा है हमारा NSR। कोल हमको किस कॉस्ट में मिलता है और हमारा स्टील किस कॉस्ट में बिकता है, इसी से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पूरा डिपेंड होता है। एंड वॉल्यूम ऑल्सो, ऑफकोर्स वॉल्यूम अच्छा ज़्यादा रहेगा तभी होगा, तो वॉल्यूम तो हमारे कंट्रोल में, हम कर लेंगे। मंथ बिगनिंग में हमको पता चलता है कि इस मंथ का हमारा कोल कॉस्ट ये रहेगा, इस मंथ का हमारा स्टील इस दाम में बिकेगा। ऑन दैट बेसिस फाइनेंस एक टारगेट कॉस्ट बनाता है कि हमको मंथ में अगर 100 करोड़ प्रॉफिट करना है तो हमारा NSR ये है, कोल कॉस्ट ये है, व्हाट शुड बी आवर कॉस्ट ऑफ सेलेबल स्टील, सेलेबल स्टील का कॉस्ट ये रहेगा, तब हम इतना प्रॉफिट कर पाएंगे। और वहां से बैक कैलकुलेट करके दे मेक द कॉस्ट ऑफ क्रूड स्टील, हॉट मेटल एंड अल्टीमेटली ब्लेंड का क्या कॉस्ट होना चाहिए, ये टारगेट कॉस्ट एवरी मंथ बनता है। और हम लोग जब मॉर्निंग मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारा बात वही होता है कि हमारा टारगेट कॉस्ट क्या है और एक्चुअल कॉस्ट क्या है और डिफरेंस का गैप का, और वो गैप को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब तक आपको कोई टारगेट नहीं पता रहेगा तो आप गैप को कम करें। ब्लेंड कॉस्ट में कितना गैप है, 1000 रुपये का गैप है, 1500 रुपये का गैप है, और उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ब्लेंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, सॉफ्ट बढ़ा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में कि पर्टिकुलर कॉस्ट को टारगेट करके हम प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन वॉल्यूम तो हो रहा है, वॉल्यूम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वॉल्यूम करने के लिए पूरा प्लांट इज कॉम्पिटेंट इन इट, बट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए दो तीन चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉल्यूम करना ही, अच्छा वॉल्यूम होने से फिक्स कॉस्ट कम होता है, वेरिएबल कॉस्ट में भी इसका इफेक्ट आता है, बिकॉज टेक्नो इकोनॉमिक्स बिकम्स गुड। थर्ड इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं उससे हमारा NSR बढ़ जाता है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। ये टारगेट कॉस्ट सबको मालूम होना चाहिए, व्हाट टारगेट कॉस्ट वी हैव टू मेक स्टील, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए डाउन बिलो, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट शुड सी कि कहाँ हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और कॉस्ट कम करने के लिए इम्प्रूवमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी कीप ऑन इम्प्रूविंग, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर वॉल्यूम्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट। इम्प्रूवमेंट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगेन आई विल टेल यू टुडे, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज ह्यूमन रिसोर्स, सेकेंड इज इक्विपमेंट्स, प्लांट, मशीनरी, एंड थर्ड इज प्रोसेसेस। ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स शुड बी हाईली मोटिवेटेड, हाईली डेडिकेटेड। आप लोग भी बोले वेल गुड, वेरी गुड, टीम वर्क होना चाहिए, बिकॉज जैसे कि हम बात किए ह्यूमन रिसोर्स हैज ए अनलिमिटेड कैपेसिटी। आप जितना उसको मोटिवेट करें, उसको इन्फॉर्म रखें, कम्युनिकेट करें, जो कि हमारा पर्पस भी करने का और आज का प्रोग्राम भी उसका एक स्टेप है। दिस रिसोर्स कैन गो टू अनलिमिटेड कैपेसिटी, उसका कोई रेटेड कैपेसिटी नहीं। Each and every employee of the plant should know कि इसका क्या responsibility है। Even the person working in S1, even a contractual employee, उसको मालूम होना चाहिए कि if I am not doing my this job, how it is going to affect my section, my department, and ultimately my organization. That is important. He should feel a connect with the organization. अगर मैं एक कोई आदमी कंट्रोल रूम को सफाई भी कर रहा है, मैं अगर कंट्रोल रूम को ठीक से सफाई नहीं करूँगा तो कंट्रोल रूम के पैनल में डस्ट जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, वो डस्ट के कारण कंट्रोल पैनल में ब्रेकडाउन हो सकता है, मिल डाउन हो सकता है या कहीं डाउन हो सकता है, इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर उसको मालूम रहेगा तो हो सकता है वो क्लीनिंग और डस्ट अच्छे से करें। तो ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू मेक द पीपल कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड कनेक्ट विद द गोल्स एंड विजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही शुड नो व्हाट इज हिज रोल। सबका important role. Each and every employee has got an important role. We have to have a connect with the employees. And if we talk about the team, motivated team, one of the most important thing is safety. तो सभी मालूम है, one accident, how much demotivating it is. One accident inside the plant, the whole team gets demotivated. Not only the team, people staying in the township, आपके family members in the township, they get demotivated. Even plant में 2-3 पेटल हुआ, मेरी वाइफ मेरे से पूछती है कि भाई आप लोग कैसे काम करते हो प्लांट में, पैटर्न हो जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, वेरी डिफिकल्ट, बाहर वाले लोगों को नहीं समझ आता, बट देयर इज कॉज फॉर दैट। कोई भी एक्सीडेंट होता है कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं,
If you don't do mistakes, if you follow the systems, accidents नहीं होते. Safety is one of the most important thing if you want to have a good team, motivated team. People should feel safe inside the plant. And talking about the safety, three things again are very important. First is safe behavior of the people. People should behave in a safe manner. कोई भी unsafe behavior कर रहा है, उसको तुरंत बोल रहा है, look here, you are behaving in an unsafe manner. 60 to 70% safety is taken care of. People are behaving in a safe manner. Second is providing safe working condition inside the plant. That is the responsibility of management to provide safe working conditions. People should feel safe that I am working in a safe place. And third is safe operating procedures and to be systems to follow them. 100% compliance. For everything there is SOP. Working in height, working in gas area, working in confined places, working in hot places. Everything safe operating practices, protocols, procedures are there. But sometimes we violate something. कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कर जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं. So it's very important कि these three things if you take care, accidents will not happen. And इसमें आप लोग का बहुत बड़ा रोल है because you are in a senior position in your shop, you are in a leadership position in your shop. आपके अंदर में टीम काम करता है. See that whether your people are behaving in a safe manner or not, or working in a safe manner, and whether systems and procedures are being followed or not. काम करना important है, but doing job in a safe manner is more important. So, आदमी के साथ कनेक्ट बनाना, human resource is one of the most important thing. Next is equipment, plant and machinery. जो आप लोग भी बोले, मतलब बोले कि inspections. अगर health of equipment is good, we can have any kind of targets. If equipments are healthy, plants are healthy, we can achieve any targets. But if equipments keep on failing, equipment breakdown हो रहा है बार-बार, you cannot have targets. You have to run the plant. Plant should not run you. आपको प्लांट को चलाना है, प्लांट आपको नहीं चलाएगा. क्या डिफरेंस है? अगर प्लांट में बार-बार ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? प्लांट आपको चला रहा है. यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, प्लांट बोल रहा है वहाँ जाइए. वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, आप वहाँ दौड़ रहे हैं. फिर वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ दौड़ रहे हैं. Means plant is making you run. But what should happen? You should sit at a place and plan the things आप plan करो. वही मैं बोल रहा हूँ कि you should know the health of the equipment. अगर आपको equipment को चलाना है अच्छे से, तो equipment का health मालूम होना चाहिए कि हमारा equipment किस condition में चल रहा है. And equipment का health मालूम होने के लिए सबसे important चीज क्या है? Inspection. आपके सबसे अच्छे आदमी लोग को आपको inspection में लगाना है. आजकल इंस्पेक्शन के लिए जो आप बोल रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट में लगाए भी अभी 350 सेंसर्स लगाया गया, वाइब्रेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, एकॉस्टिक्स के लिए, ऑल बेरिंग्स के ऊपर सेंसर लगाए जाते हैं. हम लोग जब अपने यंगर डेज में थे, मैं एडीवर्स, हम लोग सेंटर प्लांट बोकारो में थे, तो हम लोग घूम घूम के बेरिंग को छू के देखते थे, बेरिंग गर्म है, वाइब्रेशन है. आप लोग भी किए होंगे यंगर. बट आजकल तो ऑटोमेशन लेवल इतना हाई हो गया कि सेंसर आपको लगाना है और आप एक रूम में बैठ के यू कैन हैव ऑल दोस डाटा कि कहाँ वाइब्रेशन बढ़ रहा है, जैसे बोल रहे हैं. बट उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. कहीं कोई इंडिकेशन दे रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको उसको बंद करके देखना पड़ेगा. और अभी जो प्लांट में वी हैव पुटिंग, आपको मालूम होना चाहिए कि 350 सेंसर्स प्लांट में लगाए गए हैं वेरियस इक्विपमेंट्स में, जिसको कि और स्केल अप करेंगे हम लोग. स्केल अप करके अभी मोटर्स में लगाए गए हैं, फिर गियर बॉक्स में लगाए जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो so that आप इक्विपमेंट से कनेक्टेड रहे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए कनेक्ट विद द इक्विपमेंट कि हमारा इक्विपमेंट कैसा बिहेव हो रहा है. एंड बिफोर इक्विपमेंट फेलिंग यू हैव टू टेक द एक्शन. इक्विपमेंट शुड नॉट फेल. जैसे आप लोग कोई बोल रहे थे कि जीरो ब्रेकडाउन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेकडाउन इज वेरी कॉस्टली. एक बार आप ब्रेकडाउन होता है तो यू अटेंड ओनली वन इक्विपमेंट. आप प्लान करते हैं, अगर शटडाउन लेते हैं तो आप एक साथ बहुत सारा काम कर लेते हैं, आप रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं. ब्रेकडाउन में कोई इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी नहीं बढ़ता है. ब्रेकडाउन इज वेरी कॉस्टली. You have to see कि breakdown कैसे नहीं हो. That is again very important. So third is processes and technology. So latest processes है, latest technologies को follow करना. ये तीन चीज बहुत important है. अगर हम improve करना है तो connected people को connect रखना है. Connected assets, हमारे जो assets है, plant and machinery, इसको connect करना है, and connected technology. These three things are there. We are born to improve. एक चीज और इम्पोर्टेंट है आजकल, nowadays you should know कि सस्टेनेंस.
सस्टेनेंस ऑफ द प्लांट की जब बात होती है तो CO2 एमिशन आप लोग बहुत सुनते होंगे। CO2 एमिशन की बात हो रही है। CO2 एमिशन हमारा जो प्रेजेंट है, इट इज इन द रेंज ऑफ 2.4 2.45 tons per ton crude steel. The target given to us is by 2030 we have to reduce it to below 2. And the major CO2 emission is coming from blast furnace. Blast furnace में coke जलाते हैं, reduce the coke rate, increase the CDI, और भी बहुत सारे बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं, TRT लाना है, जो नए चूंकि यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस पुराने हैं, नया ब्लास्ट फर्नेस आएगा उसमें सब रहेगा। तो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स, बट इसका इम्पोर्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नाउअडेज कार्बन के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज में टैक्सेस लगे हैं। जो प्रोडक्ट का कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा उसका टैक्स लगेगा, आपका स्टील कॉस्टली हो जाएगा एंड आप मार्केट में हो सकता है कुछ दिन बाद इंडिया में भी आ जाएगा। इट विल बिकम डिफिकल्ट टू सेल आवर स्टील। मे बी आफ्टर 2030 गवर्नमेंट कैन टेल आपका CO2 एमिशन कम नहीं है, आप प्लांट बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है प्लांट चलाने की। दैट कैन ऑल्सो कम। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि वी हैव टू रिड्यूस दिस कार्बन एमिशन टू ए पर्टिकुलर लेवल बिलो 2 बाय रिड्यूसिंग द एमिशन। और आजकल लेटेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी आ रहा है कि जो एमिशन हो रहा है उसको कैप्चर करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऑलरेडी वी आर देयर इन मेकिंग लॉट ऑफ टेकिंग सम प्रोजेक्ट्स क्योंकि आवर ओवरऑल एमिशन कम है। वाटर कंजम्पशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अभी स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन इज अराउंड 2.8 to 3 meter cubes per ton crude steel. It has to go to around 2 to 2.2 meter cubes per ton crude steel. उसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हम लोग बहुत जगह एक व्हील एक्सल में लगा है, कोकवन में कभी चालू हो गया है, ब्लास्ट फर्नेस में लगा है, कमला गेट के पास एक था। जहाँ जहाँ हमारे पानी बाहर डिस्चार्ज हो रहे थे उसको रोक के अगेन सिस्टम में रिसर्कुलेट करना है। कमला गेट के पास एक बहुत बड़ा एक आउटफॉल लगा रहे हैं जहाँ पे वाटर को फिर रिसर्कुलेट करेंगे। करीब हमारा वहाँ से 700 से 800 मीटर क्यूब पर आवर पानी बाहर जा रहा है। वो पानी को टैप करके अगेन हमको यूज करना है। ये प्रोजेक्ट हमारा अगले मई जून तक आने का। तो ये वाटर कंजम्पशन आप हम लोग सभी देखते हैं कि कैसा बारिश अनसर्टेन हो गया, कभी रेन्स आता है नहीं आता है, ऑल डैम्स सूखते जा रहे हैं। अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट कि स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन एंड स्पेसिफिक एमिशंस, जो एमिशन होते हैं लोड होते हैं। PM एमिशन जो कि अभी नॉर्म एज पर नॉर्म अभी तक 50 mg था, न्यू गवर्नमेंट नॉर्म में टेस्ट करना 30 mg। These three things are very important जो आपको मालूम होना चाहिए: CO2 एमिशन, PM एमिशन एंड स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन। इसको आपको कंट्रोल में रखना है along with our productions, productivity, profitability. Talking about projects, प्रोजेक्ट के बारे में दिखाया जाए, एक्सपेंशन निकाल लिया। As far as हमारा दुर्गापुर का एक्सपेंशन का है, आपको मालूम है कि दुर्गापुर कैपेसिटी 2.4 मिलियन हॉट मेटल, 2.2 क्रूड स्टील, हम उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, 2.2, आवर प्लान इज 2.6। बट दिस दुर्गापुर का अभी जो मैन पावर कॉस्ट है, दिस इज द हाईएस्ट। हमारा मैन पावर कॉस्ट इज अराउंड 6,500 to 7,000 रुपीज पर टन दुर्गापुर में। वाई? बिकॉज आवर वॉल्यूम्स आर लेस। अदर प्लांट अगर बोकारो में देखेंगे इट इज अराउंड 4,000 to 4,500, इसको इज 3,000, राउरकेला इज 4,000। तो 3,000 रुपये का डिफरेंस तो हमारा मैन पावर कॉस्ट में कंपेयर टू बोकारो, राउरकेला। वाई? बिकॉज वो प्लांट का वॉल्यूम्स ज़्यादा है। जो बड़ा वॉल्यूम का प्लांट है, बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है, तो एक ब्लास्ट फर्नेस से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। इसको में एक ब्लास्ट फर्नेस 8,000 बनाता है, यहाँ 3 ब्लास्ट फर्नेस से 8,000 बनाता है। तो दिस इज अ ग्रेट कंसर्न एरिया फॉर दुर्गापुर की मैन पावर कॉस्ट कैसे कम करना है। That's why increasing the volume is the topmost priority. हमारा जो अभी लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट्स है, जो मैं पहले बोला आपको, एक बाद में ऑलरेडी इज अंडर टेंडर, इट विल कम। नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस 2.4 we have to go to 3.5 million ton by adding 1 blast furnace, BF नंबर 5। इसके लिए हम लोग कल कमिटी ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग भी कर रहे थे, बोर्ड में ऑलरेडी हम लोग भेज दिए। मे बी नेक्स्ट बोर्ड में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हम क्लियर करेंगे, तो आवर कैपेसिटी विल बिकम टू 3.42 hot metal or maybe 3.1 or something like that crude steel by adding 1 new blast furnace, BF number 5, some upgradation in the caster
will it cost? और छोटा छोटा काम करना है RMHP and Kogwa. तो 3.5 and after that one greenfield expansion wherein we will try to add 3 million ton. ये जो brownfield वाला है we will try to complete by maybe 27-28 and one greenfield expansion जिसको हमारे प्लांट के आसपास जो खाली जगह पड़ा है, जैसे ASP के बगल में आप देखते हैं बहुत जमीन पड़ा हुआ है, गेट नंबर 5 के पास जमीन है, मिरेंगी में जो CSF कॉलोनी है उसके पास जमीन है, ये एरिया में लेके ऑलरेडी एक DPR pre-FR मेकॉन बना दिया है, उसको भी हम लोग कॉर्पोरेट भेजे हैं, जहाँ की 3 मिलियन टन का एक प्लांट वी आर प्रोपोजिंग फॉर फ्लैट, नॉट लॉन्ग प्रोडक्ट, फ्लैट प्रोडक्ट HR12 और मे बी लेटर ऑन CR. तो ओवरऑल बाई 2030, 32 और मे बी थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे करके प्लांट कैपेसिटी शुड गो टू 6 और 6.5 मिलियन टन. दिस इज द टारगेट फॉर दुर्गापुर स्टील प्लांट. क्योंकि इतना कम कैपेसिटी का प्लांट को प्रॉफिटेबल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टफ, क्योंकि मैन पावर कॉस्ट इज वेरी हाई, हमारा ओवरहेड्स बहुत हाई है टाउनशिप एरिया. दैट इज आवर एक्सपेंशन प्लान. टॉकिंग अबाउट अदर एरियाज प्लांट्स, अगर हम बाहर आए तो टाउनशिप में कंप्लेंट्स आर देयर बट टाउनशिप स्टिल आर डूइंग गुड जॉब. अभी क्वार्टर का रिनोवेशन आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे क्वार्टर्स में टाइल्स एंड ये सब लिया गया, अभी एक्सटर्नल पेंटिंग होगा. ऑलमोस्ट 75% क्वार्टर्स में जो इंटरनल टाइलिंग किचन में वॉशरूम में वो किया गया है, किया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल में लॉट ऑफ रिनोवेशन जॉब वी हैव डन. हॉस्पिटल को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट चाहिए, जो डॉक्टर्स चाहिए, बट वन कंसर्न एरिया फॉर हॉस्पिटल इज रेफरल बिल. हॉस्पिटल का आपको पता नहीं, यू ऑल नो और नॉट, एक क्वार्टर का रेफरल बिल हमारा 8 करोड़ है हॉस्पिटल का. 1 क्वार्टर जितना हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, हमारा प्रॉफिट एक क्वार्टर का 15 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ है, एंड रेफरल बिल हॉस्पिटल इज अराउंड 8 करोड़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेफरल बिल को कम करना है. ऑफ कोर्स कुछ डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर नहीं थे, एक डॉक्टर आया, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट वी शुड हैव फेथ इन डॉक्टर्स. डॉक्टर के अंदर फेथ करना है, एम्प्लॉइज को बोलना है, लोगों को ये बताना है, हाँ डॉक्टर्स अगर रेफरल करना चाहें तो करें, बट वी शुड नॉट फोर्स डॉक्टर फॉर रेफरल. एक केस अगर रेफरल बाहर जाता है छोटा सा, उसका 2 लाख 3 लाख का बिल बनता है, एंड दैट इज कॉस्टिंग अस. जो चीज यहाँ हो सकता है, जो ऑपरेशन हो सकता है, जो फैसिलिटीज यहाँ, वी शुड ट्राई टू अवेल दोस फैसिलिटीज. टाउनशिप में और ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउनशिप वी आर डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स, रोटरीज डेवलप कर रहे हैं और बहुत चीज, सो दैट द टाउनशिप शुड लुक गुड. हमारे फैमिली रहते हैं, फैमिली शुड फील बेटर कि हम अच्छे जगह में रह रहे हैं. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हैज बीन स्टार्टेड इन टाउनशिप, दिस जॉब, ताकि एरिया पूरा क्लीन रहे. पॉलिथीन का जो जहाँ जहाँ थैले रहते थे उसको क्लीन करने के लिए दिया गया है. लॉट ऑफ अदर थिंग्स भी टाउनशिप में पैरेलली हो रहा है, जो कि विल मेक दिस टाउनशिप ए गुड टाउनशिप. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पोर्ट्स में ऑलरेडी यू हैव टोल्ड, गुड जिम इज क्रिएटेड, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट जिम इन द नेहरू स्टेडियम. बैडमिंटन कोर्ट इज बीइंग मेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्विपमेंट का हेल्थ अच्छा है, तो हमारा भी हेल्थ अच्छा रहना जरूरी है, बिकॉज इफ वी आर हेल्दी देन ओनली वी कैन परफॉर्म इनसाइड द प्लांट. It is very important for all of you, for all of your colleagues, your family members, that you stay healthy, you stay fit, because if you are not healthy, you cannot perform inside the plant. तो अपने आप को healthy रखिए, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और physical work करना again is very important. Involve yourself in some kind of physical activities. Lot of facilities are there. You should involve. इतना अच्छा stadium है, वहाँ जाके morning walk कर सकते हैं, morning walk करना चाहिए. All those things we should do. And ultimately, at the end of month, at the end of quarter, at the end of year, we have to see that how we remain profitable. So once again, good wishes to you all for your bright future. Thank you very much.